When was the last meeting of Constituent Assembly held? Here the right answer is 24th of Jan 1950. When was the last meeting of the Constituent Assembly held? The answer is 24th Jan 1950. Emergency provisions are enumerated in which part of the Constitution? Emergency provisions are enumerated in which part of the Constitution? आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. पार्ट 18th is the right answer. Emergency provisions are enumerated in which part of the Constitution? Part 18th. Land reforms have been exempted from judicial scrutiny. Under which schedule have they been placed? यहाँ पे पूछा गया है कि जो लैंड रिफॉर्म्स हैं have been exempted from judicial scrutiny. Under which schedule have they been placed? The answer is 9th schedule. Which Vice President of India died while in office? Krishna Kant is the right answer. Which Vice President of India died while in office? The answer is Krishna Kant. Department of Official Languages comes under which ministry? Department of Official Languages comes under Home Ministry. The answer is Home Ministry. How many members of Rajya Sabha are there in the Public Accounts Committee? यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं मैंने जानबूझकर नहीं दिए हैं. How many members of Rajya Sabha are there in the Public Accounts Committee? The right answer is 7. When was the first national emergency declared? When was the first national emergency declared? मेरे से पहले आपने आंसर जो है अपना नोट करना है, लिखना है, सोचना है, ताकि आप अपने मार्क्स जो है वो उनको नोट कर सको कि कितने मार्क्स आए हैं आपके. आज के इस वीडियो में हम करेंगे 40 क्वेश्चंस और 40 में से कम आपके 35 या फिर 30 मार्क्स आने चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है तो. When was the first national emergency declared? I hope आपने आंसर टिक कर लिया होगा. 26 अक्टूबर 1962. फर्स्ट एमरजेंसी जो फर्स्ट नेशनल एमरजेंसी है डिक्लेयर की गई थी 26 अक्टूबर 1962 को. Who was the first speaker of the Lok Sabha? Who was the first speaker of the Lok Sabha? The answer is G.V. Mavalankar. G.V. Mavalankar was the first speaker of Lok Sabha. When was the 42nd Constitutional Amendment Act enacted? The 42nd Constitutional Amendment Act enacted in the year 1976. What is the minimum age required to be a member of the Rajya Sabha?
What is the minimum age required to be a member of the Rajya Sabha? The answer is 30 years. When did the Constituent Assembly adopt the national flag? When did the Constituent Assembly adopt the national flag? The right answer is 22nd of July, यानी कि 22 जुलाई 1947. The Constituent Assembly adopted the national flag on 22 July 1947. What is the duration of the national anthem जन गण मन? पूछा गया है ड्यूरेशन के बारे में. Here the right answer is 52 seconds. The duration of the national anthem Jan Gan Man is 52 seconds. Next question. Under whom are the parts of the Union executive as per the Constitution? पूछा गया है कि किसके पास हैं पावर्स यूनियन एग्जीक्यूटिव की. Here the right answer is President. Question number 14. When was the Rajya Sabha first constituted? तो कब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी फर्स्ट राज्यसभा? हेयर द राइट आंसर इज. आई होप आपने आंसर टिक कर लिया होगा. द फर्स्ट राज्यसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1952. अगर बात करें डेट की तो 3 अप्रैल 1952. टैक्सेस ऑन सर्विसेज वाज enshrined in the Constitution by which amendment? Taxes on services was enshrined in the Constitution by which amendment? Here the right answer is 88th Amendment. Question number 16. By which constitutional amendment was Delhi given the status of National Capital Territory? कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके द्वारा दिल्ली को स्टेटस दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी का? हेयर द राइट आंसर इज 69th अमेंडमेंट. अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज मेंशन्ड? तो ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं ये कौन से प्रोविज़न के अंडर आती हैं? हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें जो है कौन से प्रोविजंस में जो है ये म्यूनसिपैलिटीज़ का जिक्र किया गया है? तो हेयर द राइट आंसर इज पार्ट 9th ए में है. ये पार्ट 9th ए. In which year was the Constituent Assembly of India constituted? कौन से वर्ष में भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था? In the year 1946. Next question. Question number 19. Out of 389 members in the Constituent Assembly, how many were from the provinces? तो जो 389 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग जो है प्रोविंसेस से थे? तो हेयर द राइट आंसर इज 296. व्हेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन्स फ्रॉम ऑफिस टू होम डज ही एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार हमें कन्फ्यूज़न होती है कि जब जो है प्रेसिडेंट रिज़ाइन देते हैं, कभी जो है उनकी इच्छा ना हो आगे चलने की, ड्यूटी करने की, तो वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको सौंपते हैं? हेयर द राइट आंसर इज वाइस प्रेसिडेंट को. हु वाज इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब्दुल
Kalam Azad was the India's first independent education minister. Next question. Provisions regarding anti-defection are mentioned in which schedule of the Constitution? Here the right answer is provision regarding anti-defection are mentioned in 10th schedule of the Constitution. Question number 23. After independence, which state was the first to be established? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है 1953 में आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट स्टेट जो थी एस्टेब्लिश की गई थी वो थी आंध्र प्रदेश इन द ईयर 1953. क्वेश्चन नंबर 24. फ्रीडम ऑफ प्रेस इज मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 19 में, ठीक है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है इज मेंशनड अंडर आर्टिकल 19th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच कमेटीज recommendations was fundamental duties inserted in the constitution? कौन सी ऐसी कमेटी थी जिसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में? हेयर द राइट आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी. स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन has been described as heart and soul of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar? Which article of the constitution has been described as heart and soul of the constitution? Here the right answer is article 32. Next question भी important है. The federation system in India has been borrowed from which country's constitution? The right answer is Canada. In India, military and defense powers have been given to which authority? तो right answer is president. Defense, military and defense जो है किसके पास है? President के पास. Next question. Under which article of the Constitution has मनरेगा been brought? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के जो जिसे कह सकते हैं कि आर्टिकल ऐसा है जिसके तहत जो है मनरेगा को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया? हेयर द राइट आंसर इज आर्टिकल 43. मनरेगा कम्स अंडर आर्टिकल 43. नेक्स्ट क्वेश्चन. अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन रिगार्डेड एज एन ऑफेंस? तो जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वो एक ऑफेंस है. तो भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत जो है ये एक ऑफेंस है? आर्टिकल 17 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड एमोल्यूमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर? तो राइट आंसर इज पार्लियामेंट. Directive principles of state policy has been borrowed from which country's constitution? Here the right answer is जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए गए हैं ऑफ स्टेट पॉलिसी वो लिए गए हैं आयरलैंड से. हेयर द राइट आंसर इज आयरलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 33. एट प्रेजेंट हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा? तो अगर बात की जाए आज की डेट में तो 245 इज द राइट आंसर. राज्यसभा में 245. हाउ मच इज द टर्म ऑफ द कैबिनेट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? 6 years. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एग्जामाइन्स द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन सी कमेटी है जो एग्जामाइन करती है रिपोर्ट्स को? किसकी? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो राइट आंसर इज
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। नेक्स्ट इज विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इन इंडिया। तो कौन सी ऐसी अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देती है स्टेटस टू पंचायती राज इन इंडिया। हेयर द राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 36, 73rd अमेंडमेंट, पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट। Disputes between center and the states are between states themselves is decided by which court। कौन सा कोर्ट है? तो द राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे वो सेंटर और स्टेट्स में हो, चाहे स्टेट्स का ही हो, तो उसको जो है कौन बिटवीन स्टेट्स देमसेल्व्स इज डिसाइडेड बाय विच कोर्ट, तो कौन डिसाइड करता है उसको? सुप्रीम कोर्ट। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डन बाय विच प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है जिसके तहत जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? तो यहाँ पे द राइट आंसर इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज द राइट आंसर, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। कौन थे उस वक्त इंडिया के वाइसराय जब शिमला कॉन्फ्रेंस जो है हुई थी? द राइट आंसर इज लॉर्ड वावेल। लॉर्ड वावेल इज द राइट आंसर। Last question, the High Court can stop the proceedings of an inferior court on grounds of exceeding its jurisdiction. By which writ is this possible? कौन सी ऐसी रिट है जिसके द्वारा ये जो है अधिकार है उसके पास? द राइट आंसर इज प्रोहिबिशन। ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।